ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے لیے پاکستان نہ جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر دلی اظہار تشکر، واضح کیا کہ ایرانی موقف کو امریکی میڈیا پر غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ بھارت ایئر فورس فلیگ آپریشن کے موڈ میں اپنے لوگوں یا قید پاکستانی کی لاشیں پھینک کر دہشت گردی کا ڈرامہ رچانے کی کوشش، کوئی بھی حرکت کی تو کولکتہ تک گھس کر پھینٹی لگائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مودی سرکار کو انتباہ۔ وزیر دفاع کی صحافیوں سے گفتگو، امریکہ ایران جنگ مذاکرات پر تبصروں سے گریز کا مشورہ۔ پاکستان کی آبی سرحدیں ناقابل تسخیر، جدید ہتھیاروں اور حساس آلات سے لیس، ملجم کلاس PNS خیبر پاک بحریہ میں شامل، تجارتی اور توانائی کے راستوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت ایک طاقتور بحریہ کی متقاضی ہے۔ طاقتور بحریہ سمندری مواصلاتی راستے محفوظ بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ نیول چیف کا کمیشن کی تقریب سے خطاب، کہا کہ مارقہ حق میں بھارتی طیارہ بردار جہاز غرق کرنے کو تیار تھے، دشمن کو پسپا اور چھپنا پڑا۔ عالمی تیل بحران میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم کا ایکشن، 137 روپے اضافے کے اگلے ہی روز، پیٹرول 80 روپے فی لیٹر سستا، لیوی میں بڑی کمی کے بعد 378 روپے فی لیٹر میں فروخت۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام نے بڑے ریلیف کو ناکافی قرار دے دیا۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر کی سرکاری پبلک ٹرانسپورٹیشن میں عوام کو مفت سفر کی سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔ عوام اورنج ٹرین اور میٹرو سمیت تمام ٹرانسپورٹیشن ایک ماہ تک بغیر ٹکٹ کے خرید کر استعمال کر سکے گی۔ مفت سفر کی سہولت ملنے پر شہری بہت خوش ہیں۔ پنجاب اور اسلام آباد کے شہریوں کو سرکاری پبلک ٹرانسپورٹیشن میں مفت سفر کی سہولت۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کے عوام ٹرانسپورٹیشن مافیا کے رحم و کرم پر ہیں۔ ڈیزل بڑھتے ہی کرایوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ بوشہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر امریکہ اور اسرائیل کا چوتھا حملہ، ایک اہلکار جام حق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ رات گئے تہران میں شہری علاقے پر شدید بمباری، 3 افراد شہید۔ کرچ میں زوردار دھماکہ۔ 2 روز قبل امریکی حملے میں ایران کے بلند ترین پل کو ٹارگٹ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کا متاثرہ پل کا دورہ۔ امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ میں 365 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکی جریدے انٹرسیپٹ کے مطابق صورتحال واشنگٹن کے بیان کردہ حقائق سے زیادہ ہولناک، ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 750 سے زائد ہو گئی۔ انٹرسیپٹ کا پینٹاگن پر اصل صورتحال چھپانے کا الزام۔ ایران نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تردید کر دی۔ گزشتہ ماہ ہونے والا حملہ اسرائیل کا کارنامہ تھا۔ صہیونی ریاست نے خطے کے ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کی وضاحت، امریکی اخبار کے مطابق سعودی حکومت نے اصل خبر چھپائی۔ حملے میں سفارت خانے کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکیوں پر مشکل وقت، 2 جنگی طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ۔ تیسرا F-16 ہٹ ہونے کے بعد ایئر بیس پر اتار لیا گیا۔ اصفہان میں ڈرون تباہ۔ کویت میں امریکی بیس پر حملے میں کئی چنوک ہیلی کاپٹرز تباہ اور برباد۔ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایران کے جدید طیارہ شکن میزائلز کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ امریکی ٹی وی کا اعتراف، گرائے گئے F-15 طیارے کے دوسرے پائلٹ کو پکڑنے کے لیے مسلح ایرانی قبائلیوں نے پہاڑوں پر تلاش شروع کر دی۔ امریکہ کی ایران سے 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی اپیل، تہران نے صاف انکار کر دیا۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی اہداف پر میزائلز اور ڈرونز حملوں کی 93ویں لہر۔ حماس کے بانی سربراہ شیخ احمد یاسین شہید اور حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے نام۔ اسرائیلی فوجی ٹھکانے اور موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ۔ مغربی الجلیل، حیفا، کفر کنہ اور کریوت میں تباہی مچ گئی، آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی نیم سرکاری نیوز ایجنسی نے ویڈیو جاری کر دی۔
इराक के शहर बसरा के करीब गैर मुल्की ऑयल कंपनीज के टैंक्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। दुबई में मरीना एरिया में ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कंपनी ऑरेकल का दफ्तर 2 दिन के दौरान दूसरी बार टारगेट। अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। मिस्री शहरी जाम बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी दिफाई मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें खत्म होने की खबरें सख्ती से मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदरावी की वसाहत। आबराए हुर्मुज़ से फ्रांस और जापान के बाद तुर्क परचम बरदार जहाज भी बाहिफाजत निकल आए। आज 3 जापानी जहाज आबी गुजरगाह से गुजरे थे। आबराए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुलने का कोई इम्कान नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप इंतजामिया को इरसाल कर दी गई। 2 अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबराए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। ईरानी मीडिया की जानिब से AI की बनी वीडियो जारी। वीडियो में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने और तबाही के मनाज़र दिखाए गए। (1973) के दस्तूर के खालिक, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 47वां यौम शहादत है। पीपल्स पार्टी को जियालों को मज़ार की बजाय घरों में फातिहा ख्वानी की हिदायत। जमहूरियत के फ़रोग़ में शहीद भुट्टो की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर हसन इक़बाल ने कहा कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती सतह पर काविशें कर रहा है। तमाम सूबों ने अवाम को रिलीफ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इक़दाम किए। मुशावरत से मज़ीद फैसले होंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले हलाक 8 ख़वारिज की शनाख्त। 2 दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुर्रहीम का ताल्लुक पक्तिका से निकला। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती न करने का दावा झूठा साबित निकला। अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाक़ात में याला बारिश से मौसम सर्द। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में हालिया बारिश के बाद रात के वक्त दर्जा हरारत में नुमायां कमी रिकॉर्ड। और PSL सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त। बारिश के बाइस 13 ओवर्स तक महदूद मैच में लाहौर कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग। मोहम्मद नईम ने 28 गेंदों पर तेज रफ्तार 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स 13 ओवर्स में 165 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी का मैच होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान न जाने की खबरों की तरदीद कर दी। हम के लिए पाकिस्तान की काविशों पर दिली इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि ईरानी मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया पर गलत अंदाज से पेश किया गया। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। भारत एयर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मूड में अपने लोगों या कैद पाकिस्तानी की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाने की कोशिश। कोई भी हरकत की तो कोलकाता तक घुसकर फैंटी लगाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को इंतबाह। वज़ीर दिफा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात पर तबसरों से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान की आबी सरहदें नाकाबिले तस्खीर। जदीद हथियारों और हसास आलात से लेस बेल्जियम क्लास PNS खैबर पाक बहरिया में शामिल।
तजारती और तवानाई के रास्तों के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई हैसियत एक ताकतवर बहरिया की मतवाजी है। ताकतवर बहरिया समुद्री मवासलाती रास्ते महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर है। नेवल चीफ का कमीशन की तकरीब से खिताब, कहा कि मार्का हक में भारतीय तैयारा बरदार जहाज गर्क करने को तैयार थे, दुश्मन को पसपा और चुपना पड़ा। आलमी तेल बहरान में आवाम को रिलीफ देने के लिए वजीर आजम का एक्शन। 137 रुपए इजाफे के अगले ही रोज पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता। लेवी में बड़ी कमी के बाद 378 रुपए फी लीटर में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम ने बड़े रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अवाम को मुफ्त सफर की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्टेशन एक माह तक बगैर टिकट के खरीद कर इस्तेमाल कर सकेगी। मुफ्त सफर की सहूलत मिलने पर शहरी बहुत खुश हैं। पंजाब और इस्लामाबाद के शहरियों को सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मुफ्त सफर की सहूलत। मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम ट्रांसपोर्टेशन माफिया के रहमो करम पर हैं। डीजल बढ़ते ही किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मू शहर में ईरान के एटमी प्लांट पर अमरीका और इसराइल का चौथा हमला। एक एहलकार जाम हक ईरानी मीडिया के मुताबिक एटमी प्लांट को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रात गए तेहरान में शहरी इलाके पर शदीद बमबारी, 3 अफराद शहीद। करच में जोरदार धमाका। 2 रोज कबल अमरीकी हमले में ईरान के बुलंद तरीन पुल को टारगेट बनाने की वीडियो सामने आ गई। बैनुल अक़वामी मीडिया का मुतासरा पुल का दौरा। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में 365 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट के मुताबिक सूरत हाल वाशिंगटन के बयान करदा हक़ाइक़ से ज्यादा हौलनाक। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद 750 से जायद हो गई। इंटरसेप्ट का पेंटागन पर असल सूरत हाल छुपाने का इल्जाम। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की तरदीद कर दी। गुज़श्ता माह होने वाला हमला इसराइल का कारनामा था। सहूनी रियासत ने खत्ते के ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए हमला किया। पासरान इनकलाब की वसाहत। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने असल खबर छुपाई। हमले में सफारतखाने को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकियों पर मुश्किल वक्त। 2 जंगी तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह। तीसरा F-16 हिट होने के बाद एयरबेस पर उतार लिया गया। इस्फहान में ड्रोन तबाह। कुवैत में अमरीकी बेस पर हमले में कई चनॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह और बर्बाद। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ईरान के जदीद तैयारा शिकन मिसाइल का सुराग लगाने में नाकाम रहे। अमरीकी टीवी का एतराफ़। गिराए गए F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए मुसल्लह ईरानी कबायलियों ने पहाड़ों पर तलाश शुरू कर दी। अमरीका की ईरान से 48 घंटे के लिए जंग बंदी की अपील। तेहरान ने साफ इनकार कर दिया। ईरान की अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स हमलों की 93वीं लहर। हमास के बानी सरबराह शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम। इसराइली फौजी ठिकाने और मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह। मगरबी अल जलील, हाइफा, कुफरकुन्ना और करियोत में तबाही मच गई। आग भड़क उठी। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। इराक़ के शहर बसरा के करीब गैर मुल्की ऑयल कंपनीज के टैंक्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। दुबई में मरीना एरिया में ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कंपनी ऑरिकल का दफ्तर 2 दिन के दौरान दूसरी बार टारगेट। अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। मिस्री शहरी जाम हक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में अमरीकी दिफाई मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें खत्म होने की खबरें सख्ती से मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की वसाहत।
आबनाए हुर्मुज़ से फ्रांस और जापान के बाद तुर्क परचम बरदार जहाज भी बाहिफाजत निकल आया। आज 3 जापानी जहाज आबी गुजरगाह से गुजरे थे। आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुलने का कोई इम्कान नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप इंतजामिया को इरसाल कर दी गई। 2 अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। ईरानी मीडिया की जानिब से AI की बनी वीडियो जारी। वीडियो में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने और तबाही के मनाज़र दिखाए गए। (1973) के दस्तूर के खालिक एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 47वां यौम शहादत है। पीपल्स पार्टी को जियालों को मज़ार की बजाय घरों में फातिहा ख्वानी की हिदायत। जमहूरियत के फ़रोग़ में शहीद भुट्टो की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर हसन इक़बाल ने कहा कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती सतह पर काविशें कर रहा है। तमाम सूबों ने अवाम को रिलीफ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इक़दामात किए। मुशावरत से मज़ीद फैसले होंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले हलाक आठ ख़ारिज की शनाख्त। 2 दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुर्रहीम का ताल्लुक पक्तिका से निकला। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती न करने का दावा झूठा साबित निकला। अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ मज़ीद शिद्दत के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाक़ात में याला बारिश से मौसम सर्द। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में हालिया बारिश के बाद रात के वक्त दर्जा हरारत में नुमायां कमी रिकॉर्ड। और PSL सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त। बारिश के बाइस 13 ओवर्स तक महदूद मैच में लाहौर कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग। मोहम्मद नईम ने 28 गेंदों पर तेज रफ्तार 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स 13 ओवर्स में 165 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी का मैच होगा।